और खेल की दुनिया में T20 विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। नमस्कार, समाचार विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री के इटली दौरे से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री मोदी इटली के दौरे पर 16वें G20 सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। इटली G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 80% से ज्यादा, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा है। आज वेटिकन सिटी में प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच मुलाकात हुई। वेटिकन सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के बीच मुलाकात हुई। 1 घंटे तक चली इस बैठक में जलवायु परिवर्तन और गरीबी हटाने पर विचार विमर्श हुआ। उल्लेखनीय है कि वेटिकन सिटी एक अलग संप्रभु राष्ट्र है और पोप फ्रांसिस इसके सर्वोच्च नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के निमंत्रण पर 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। दोनों के बीच दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने और गरीबी को हटाने जैसे कई व्यापक मुद्दों पर आज चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। Si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. अंगूर है उससे भर जाएगा। वाह। Peace. I have seen for you today. Oh. That's it. And you pay for I'll always remember. I'll be happy to receive you. Thank you. Yeah. It's a great honor. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor. I'm very happy. And I would like to see you in India. Yes. It is my great honor to receive you there. Yes, thank you very much. And pray for me, don't forget. I talk to you. Your prayers are always giving me strength. Thank you. I will come. Thank you very much. And, Your Holiness, you know, for the candle stand, thank you. it's very specially made for my country. Thank you. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. Questo per lei, questo è un medaglio fatto qui in Vaticano. वेटिकन में स्पेशली बनाया गया है आपके लिए। Wow. Si dice l'abbondanza, il grano, l'uva, Wow. tutto. E si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. अंगूर है उससे भर जाएगा। Wow. Peace.
I have seen for you today. Oh. अच्छा And you I'm playful. I'm playful. I'll always remember. I'll be happy to receive you. Yeah. It's a great honor. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor for me, Very happy. and I would like to see you in India. Yes. It is my great honor to receive you there. Yes. Thank you very much. And pray for me, don't forget. I talk to you. Your prayers are always giving me strength. I will come. And, thank you very much. And, Your Holiness, you know, for the candle stand, yes, thank you. it's very specially made for my country. Thank you. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. Questo per lei, questo è un medaglio fatto qui in Vaticano. वाटिकन में स्पेशली बनाया गया है आपके लिए. Wow. Si dice l'abbondanza, il grano, l'uva, Wow. tutto, e si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. अंगूर है उससे भर जाएगा. Wow. Peace. I have seen for you today. Oh. अच्छा And you I'm playful. I'm playful. I'll always remember. I'll be happy to receive you. Yeah. It's a great honor. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor for me, Very happy. and I would like to see you in India. Yes. It is my great honor to receive you there. Yes. Thank you very much. And pray for me, don't forget. I talk to you. Your prayers are always giving me. तो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप से मुलाकात की तस्वीरें भी ट्वीट की. उन्होंने लिखा, पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात बेहद गर्मजोशी भरी रही. मुझे उनके साथ कई विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला. साथ ही मैंने उन्हें भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया. तो प्रधानमंत्री मोदी इटली के दौरे पर 16वें G20 सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं. इटली G20 की अध्यक्षता कर रहा है. G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 80% से ज्यादा, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा है. सम्मेलन में G20 सदस्य देशों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं. शिखर सम्मेलन की थीम पीपल
प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी है। इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तू जी, एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तू जी, एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार और घोटाले का पर्याय बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस किसी भी राज्य में विकास का काम नहीं कर सकती। कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं। अमित शाह ने कोरोना के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कोरोना का आपदा आई, पहाड़ पर है हमारा प्रदेश। दूर सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मगर कोई भी कहां पर भी रहा हो, मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, कोरोना से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज अयोध्या दौरे के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से स्वच्छता की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दीपोत्सव के दौरान और उसके बाद भी हमें अयोध्या को साफ सुथरा रखना है। ये भी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, वो सपना भी साकार करने का काम मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। नींव पत्थर राम मंदिर का रख दिया है। अगले 2 सालों के अंदर भव्य राम मंदिर बनकर भी तैयार हो जाए। इस बार की दीपावली पर भी दीपोत्सव से पहले हमें पूरे अयोध्या में शानदार स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए और पूरी अयोध्या को साफ सुथरा करने का काम करना। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हम सभी मिलकर अपनी कर्म भूमि भारत को पूर्ण उत्साह और कर्मठता से स्वच्छ और समृद्ध बनाने का प्रण लें। भगवान के करीब लाता है। स्वच्छता का स्थान धर्म भूमि और कर्म भूमि दोनों में ही सर्वोपरि है। उत्साहो बलवान आर्य न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। अर्थात उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जन जन के उत्साह से ही स्वच्छता मुमकिन है। जब संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस उपलक्ष्य में आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लें, अपनी कर्म भूमि भारत को पूर्ण उत्साह और कर्मठता से स्वच्छ और समृद्ध बनाने का प्रण। आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप दौरे के दौरान स्थानीय मछुआरों से मुलाकात की।
डॉक्टर एल मुरुगन ने मुलाकात के दौरान कहा कि मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने कवारत्ती में मत्स्य संग्रहालय का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री रविवार को अगत्ती द्वीप में राष्ट्रीय एकता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों में रैलियों का आयोजन हो रहा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से हरी झंडी दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नेशनल पुलिस मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने एनएसजी और भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ रखने में जिन जिन जवानों ने सेवा दी, उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव जताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है। आज विश्व भारत को और नई आशा से देख रहा है। एनएसजी परिवार को इस सफल कार रैली के आयोजन के साथ साथ आगामी वर्षों में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक योगदान की दृष्टि से आपके हर कार्य की सफलता की कामना करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के नागरिकों की ओर से एनएसजी एवं भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ रखने में जिन जिन जवानों ने वर्तमान में सेवा दी है, जो वर्तमान में अपने सर्विसेज के माध्यम से तैनात हैं, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की ओर से आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी एमए गणपति ने कहा कि एनएसजी न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि सामाजिक मूल्य और दायित्वों के निर्वहन के लिए भी प्रयासरत है। एनएसजी का कमांडोज ने एंटी टेररिस्ट, एंटी हाईजैकिंग और बॉम्ब डिस्पोजल का कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन ऑपरेशनों में अपना अदम्य साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है और विकट परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना सर्वोत्तम सुरक्षा का आदर्श स्थापित किया है। एनएसजी न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि अपना सामाजिक मूल्यों और दायित्वों के भी निर्वहन के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह कार रैली देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के इन्हीं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में दिशा में किया गया एक प्रयास है। लोकसभा की 3 और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। लोकसभा की मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा और नागर हवेली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। और कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार का कल बेंगलुरु में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांतिरावा स्टेडियम में रखा गया है। अभिनेता पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। और कोरोना संक्रमण की ताज़ा स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,543 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.19% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,61,555 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.22% पर है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल
70 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 105.43 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 56,91,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तू जी, एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तू जी, एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड में हिस्सा लेने के लिए त्रिपुरा पुलिस का एक मोटरसाइकिल दस्ता भी पहुंचा है। त्रिपुरा के इस दल से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों से आया दल हिस्सा लेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड में गुजरात में यहाँ पर। और ये त्रिपुरा से दल आया हुआ है मोटरसाइकिल से, त्रिपुरा के जवानों का दल ये भी हिस्सा लेंगे। आप लोग त्रिपुरा में कहां से मोटरसाइकिल रैली निकाल कर यहाँ आए? नेशनल यूनिटी का जो संदेश है वो संदेश लेते हुए हम लोग असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी और आखिर में हम लोग गुजरात में फाइनली पहुंच चुका है। एकता का जो संदेश हमने दिया है, जगह जगह पर हमारी सबसे मुलाकात हुई तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनका एक नारा था कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत, क्योंकि उन्होंने जो 563 रियासतें थीं उनको एकता में पिरो करके एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर परेड होने वाली है और इस तरह से तमाम दल यहाँ पर आए हैं साइकिल के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए यहाँ इस परेड में हिस्सा लेने के लिए। संदेश साफ है राष्ट्रीय एकता का। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, केवड़िया। और अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान अफगानी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अफगानिस्तान रिफ्यूजी विमेंस एसोसिएशन की महिलाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों पर तख्ते लिए महिलाओं और छोटी बच्चियों ने कहा कि अफगानिस्तान महिलाओं के विकास के लिए जरूरी है कि उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने विश्व समुदाय से अफगानिस्तानी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अभिव्यक्ति के लिए सामने आने की अपील की। दिल्ली के जंतर मंतर में अफगानिस्तान रिफ्यूजी वुमेन्स एसोसिएशन की महिलाओं ने यहां पर प्रोटेस्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और भाषणों का काम भी जारी है और ये डिमांड कर रही हैं न केवल यूएन से बल्कि विश्व समुदाय से कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या विवाह की बात हो, जिस तरीके से वहाँ के महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। वो चाहते हैं कि 20 साल से जिस प्रकार से वो महिलाएं वहाँ पर रह रही थी, रोजगार हासिल कर रही थी, शिक्षा हासिल कर रही थी, उसी प्रकार से उनके जो अधिकार हैं उनको फिर से लागू किया जाए और वो महिलाएं फिर से अपना जो विकास कर सके। So we really want the honest and the loyal, the loyal support from someone's side, especially from human rights. There has to be there to help us to protect the Afghan women. हम यहाँ पर आज होल अफगान वुमेन जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए हम आज अपनी वॉइस को राइज करनी चाहते हैं और जस्टिस के लिए। और हम वर्ड से यही हमारा यही मांगा है
मांगना है जो अफ़गानिस्तान के लिए प्लीज़ उनके साथ मदद कर दीजिए और उनके वॉइस को प्लीज़ सुन लीजिए। अफ़गानिस्तान तो बहुत लोग, वो तो बिल्कुल बुरा है, वहाँ गुरस्तगी भी है, सब कुछ है, पोल्यूशन भी है, सब कुछ है, मारना और पीटना और लड़ाई और स्कूल तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आराम होना चाहिए, आराम है ही नहीं कि हम उधर जाएं, अच्छा प्लेस है मगर आराम नहीं है, लड़कियों को किडनैप करते हैं और वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी नहीं चलेगी, इसीलिए हम दुनिया से ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो तालिबान अभी जो जुल्म कर रहे हैं उससे आगे ले ले, मतलब वो तालिबान को रिकॉग्नाइज ना करें और तालिबान के जो जुल्म कर रहे हैं उसको रुकना चाहिए और लेडीज़ को, औरतों को जो पढ़ाई जो उनको घरों में बिठाया उसको वापस आना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां हों, महिलाएं हों, ये तमाम वो लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान में उनके अधिकारों का हनन जिस प्रकार से हो रहा है उसका प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ से ये लोग इनका मांग है कि वो न केवल यूएन बल्कि तमाम विश्व के जितने भी देश हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं कि वो वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर कदम उठाएं। कैमरामैन अजय के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तालिबान के अत्याचार के खिलाफ अफगान महिलाओं ने अपनी आवाज़ की बुलंद। और रुक करते हैं खेल की दुनिया का। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले जाने वाले पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका के साथ है। पिछले 2 साल में दक्षिण अफ्रीका का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। सितंबर में अफ्रीकी टीम ने श्रीलंका को 3 T20 मैचों की सीरीज में 3-0 से मात दी थी। श्रीलंका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 6 T20 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं दूसरे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने हैं। दोनों ही टीमों ने अब तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। इस मैच में जीत दोनों को जीत की हैट्रिक देगी और सेमीफाइनल के नजदीक भी पहुंचा देगी। ये प्रतियोगिता में इंग्लैंड का अब तक का सबसे कड़ा इम्तिहान होगा। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करने में इंग्लैंड को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी और ये मैच उनके लिए भी अपनी ताकत को परखने का एक अच्छा मौका है। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मायच्या डोहाले पाजर नाही। मराठी फिल्म बार्डो की गायिका सावनी रविंद्र जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। खुद की जो खोज होती है एज एन आर्टिस्ट वो लाइव परफॉर्मेंस में होती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ ये किसी को पता ना पड़े और जिस भी लैंग्वेज मैं गाती हूँ तो लोगों को ऐसा लगे कि मैं उसी वही मेरा नेटिव है। जो भी अभी काम कर रही हूँ उसका सब क्रेडिट मेरे फैमिली को जाता है, मेरे हस्बैंड को और मेरे इन-लॉज को स्पेशली। किसी भी लेडी का करियर उसका खुद का नहीं होता, उसके परिवार का जब हो जाता है तभी वो कुछ ना कुछ कर पाती है, हासिल कर पाती है लाइफ में। कंगल पोये सुलहदा निंजम मेरा सुलहदा। मिलिए गायिका सावनी रविंद्र से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्कार, मेरा हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास तभी माना जाता है जब वहां के जो स्थानीय कारीगर हैं उनके द्वारा जो बनाया गया उत्पाद है वहीं के लोग सबसे ज्यादा खरीदते हों, पसंद करते हों। इसीलिए लगातार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है ताकि जो आर्थिक स्तर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री भी लगातार पूरे देशवासियों से ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने स्थानीय उत्पादों से इस उत्पादों को ही खरीदें, अपने जो स्थानीय बाजार हैं उसको आप बढ़ावा दें। इससे कई फायदे निकल के आते हैं। एक तो कारीगर की आर्थिक स्थिति बढ़ती है, इसके साथ साथ ये भी निकल के आता है कि रोजगार की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं। और आप अगर ऑनलाइन भी खरीदारी करते हैं तो ऑनलाइन खरीदारी में भी एक ऐसा सेक्शन जरूर होता है जहां पर मेड इन इंडिया या फिर लोकल प्रोडक्ट के लिए अलग से वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर देश को विस्तार देना है, देश के राष्ट्र में अगर आर्थिक योगदान को बढ़ावा देना है तो आर्थिक उत्पादों के साथ साथ जो स्थानीय उत्पाद हैं
उनको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जो स्थानीय उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य स्तर पर संचालित की जा रही, चाहे MSME के माध्यम से या अलग अलग योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण खास मेहमान, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ SK जिंदल साहब है, चेयरमैन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट एसोचैम से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं अनिल कुमार जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और सबसे पहले जिंदल जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि जो कोरोना का एक वैश्विक संकट रहा है, पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो छोटे उद्योगों में भी छोटे जो उद्योग हैं उन पर पड़ी है। ऐसे में क्या हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो अपने आसपास के जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, उनमें जाकर खरीदारी करने की जरूरत है? आज अपने देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा छोटे उद्योगों से ही मिलकर के बनता है, तो बहुत जरूरी है कि जो 2 साल में उनको बहुत मुश्किलें हुई हैं उनमें हम उनको सपोर्ट करें। देश ने पूरी तरह सपोर्ट किया, जो देश कर सकता था सरकारों ने किया, लेकिन साथ ही में देश के नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि वो उनको सपोर्ट करें, उनको मदद करें, उनको बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहित करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे उनकी मुश्किलें कम हो जाती हैं और वो मजबूत बनते हैं। उनको एम्पावर करना हम सबका फर्ज बनता है। अगर हम उनको एम्पावर करते हैं तो देश एम्पावर होता है, अगर हम उनको कमजोर छोड़ते हैं तो देश कमजोर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब कुछ हमने देखा है होते हुए, करते हुए जी। वहां बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर हम उन्हें मदद करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उत्पाद, बहुत सारी चीजें गांव में पैदा होती हैं। ऑर्गेनिक खेती जो है वो गांव का सब्जेक्ट है, वहां पर बहुत बढ़िया से ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। वो अपने रिसोर्सेज से उसको कर सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती के जरिए उत्पाद, लोकल उत्पाद, आप वहां से मसाले वगैरह सब वहीं पे पैदा होते हैं। वहां की जमीन उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। जिंदल जी, हम ग्रामीण संस्कृति पर जरूर बात करेंगे। ग्रामीण जीवन शैली जो कभी हुआ करती थी परंपरागत तरीके से,